Students, this is History Class 10th, Chapter 2, Nationalism in India, and today is going to our last class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। उस समय उनकी एज 46 ईयर्स थी और 1919 से 1948 का जो समय है भारतीय इतिहास में, वो गांधीयन एरा, गांधी के समय के बारे में से जुड़ा हुआ है। इस तरह से समय समय पर अलग अलग आंदोलन चलाए गए और लोगों ने, महिलाओं ने, समाज के अलग अलग समूहों ने, वर्गों ने बढ़ चढ़कर आंदोलनों में भाग लिया। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. इसलिए 20वीं शताब्दी के पहले 50 सालों में हम देखते हैं कि अलग अलग समूह के लोगों ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आंदोलनों में भाग लिया। हालांकि इन अलग अलग समूह के लोगों का मतलब स्वराज से, फ्रीडम से अलग अलग था। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू channel people's grievances into organized movements for independence. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity, but as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspiration and expectations. इस तरह से महात्मा गांधी के प्रयासों से लोगों ने आंदोलनों में भाग लिया। हालांकि इन सब का जो मतलब था आज़ादी से, स्वराज से, वो अलग अलग था। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of the one group did not alienate another. हालांकि एक समाज के, समुदाय की, वर्ग की आकांक्षाएं अलग थी, फिर भी जो नेता थे महात्मा गांधी जैसे, उनके प्रयासों से ये कोशिश की गई कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग न हो, एक वर्ग दूसरे वर्ग से अलग न हो, सब लोग मिलकर आंदोलन में भाग लें और आज़ादी के लिए रास्ता तैयार करें। दिस इज प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. लेकिन फिर भी समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से अलग हो जाते हैं और एकता के साथ साथ हमें जो अनेकता है और जो द्वंद्व है उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक राष्ट्र जो अलग अलग लोगों के प्रयासों से उभरकर सामने आ रहा था, उसकी बहुत सारी आवाज़ें थी, उसकी एक आवाज़ नहीं थी। The failure of the Cripps mission and the effects of the World War II created widespread discontentment in India. This led Gandhiji to launch a movement calling for complete withdrawal of the British from India. The Congress Working Committee, in its meeting in Wardha on 14 July 1942, passed the historic Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India. भारत छोड़ो आंदोलन जो अंतिम महत्वपूर्ण आंदोलन था गांधी के द्वारा चलाया गया, इसमें हम क्या देखते हैं कि जहां एक और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 में, वहीं उससे पहले क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसका भारतीयों ने स्वागत नहीं किया और महात्मा गांधी ने उसके विरोध में, क्रिप्स मिशन के विरोध में
पूर्ण स्वराज की मांग के साथ साथ, अंग्रेजों को भारत से निकालने की मांग के साथ साथ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी करनी शुरू कर दी। और यही वो आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने अपना महत्वपूर्ण नारा डू और डाई दिया। ऑन 8 अगस्त 1942 in Bombay, the All India Congress Working Committee endorsed the resolution that called for a non-violent mass struggle in the widest possible scale throughout the country. It was on this occasion that Gandhiji delivered the famous Do or Die speech. The call for quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. People observed hartals and demonstrations, and processions were accompanied by नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स। इस तरह से 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था, जो प्रस्ताव था, वो पास होता है और समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। पीपल ऑब्जर्व हड़ताल, लोगों ने हड़तालें की, धरने दिए, जुलूस निकाले। द मूवमेंट वॉज ट्रूली अ मास मूवमेंट विच ब्रॉट into its ambit thousands of ordinary people, namely students, workers, peasants. It also saw the active participation of leaders like namely Jayaprakash Narayan, Aruna Asaf Ali and Ram Manohar Lohia, and many women such as Matangini Hazara in Bengal, Kanaklata Barua in Assam, Rama Devi in Odisha, and the British responded with much force, yet it took more than a year to suppress the movement. इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिनमें जयप्रकाश नारायण पुरुषों में, अरुणा असफ अली और राम मनोहर लोहिया शामिल थे, और महिलाओं में मतंगिनी हजारा बॉम्बे से, कनकलता बरुआ आसाम से और उड़ीसा से रमा देवी ने भाग लिया। हालांकि आंदोलन को अंग्रेज़ों ने सख्ती से दबाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो 1 वर्ष तक आंदोलन को नहीं दबा पाए। थैंक्स।